हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और रिसेंटली अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था, तो उसी के चलते मैंने कुछ कॉमिक्स परचेज किया हूं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि इस बार के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से मैं क्या क्या परचेज किया। So here they are. Here are all the comics that I have ordered recently from Amazon, thanks to my dear friend Saurav. So Saurav Kotoki really helped me to make this purchase. And overall ठीक ठाक डिस्काउंट था. It was not that great of a deal, but कुछ कार्ड्स यूज करने से एक्स्ट्रा 5 या 10% का डिस्काउंट मिल रहा था on the order total. So that kind of sweetened the deal a bit more. So anyway guys, let's get started with the overview of this comics. So first of all, जैसे कि आप देख सकते हैं, it's Kraven's Last Hunt. One of the must buys if you are a Spider-Man fan. In terms of inside artwork and story, it is old school, but जिस वक्त में ये publish हुआ था, it was miles ahead of its time. So anyway, let's crack this book open and show you how the inside artwork is like. So as you can see, even आज के दिन में भी इतना बेहतरीन आर्टवर्क आपको बहुत सारे कॉमिक्स में देखने के लिए ना मिले. कलर्स उस जमाने के मुताबिक थोड़ा फ्लैट सा ही है, but as you can see, the artwork is pretty dope. So Kraven's Last Hunt एक ऐसा स्टोरी है which as many people claim deserves a separate review video. So देखता हूँ फ्यूचर में कभी पॉसिबल होगा तो I'll cover it अलग से, but फिलहाल here is the overview for you guys. The iconic cover जो मेन कवर में भी यूज किया गया है, but with some recolorizations. Amazing, beautiful artwork, I must say. So yeah, next Injustice, the complete collection year 4 and year 5. और इसी के चलते मेरा Injustice का कलेक्शन पूरा होता है और अब इसे कंप्लीट करके पढ़ने का वारी आ ही गया दोस्तों. So I have the complete year 1, year 2 and year 3 with year 0 complete collection and Ground Zero volume 1 and volume 2 along with Injustice versus Masters of the Universe, which was a pretty pathetic read, let me be very honest. सो एनीवे, मेरा इंजस्टिस का कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, भारी भरकम कलेक्शन है. देयर इज स्टिल इंजस्टिस 2 एंड स्टफ्स लाइक दैट व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइट नाउ. मेरा मेन स्टोरी आर्क और कुछ कंपेनियन रीड्स कंप्लीट है. सो या, लेट्स डाइव इनटू इट. सो दिस इज ईयर 4 एज यू कैन सी. ये थोड़ा थिनर है एज कंपेयर टू ईयर 5. हेयर इज द एमआरपी, बट लगभग 1500 के आसपास में मुझे ये मिल गया. सो हेयर इज हाउ द इनसाइड आर्टवर्क लुक्स लाइक. Pretty amazing. Paper stock is semi gloss, लेकिन कलर प्रोडक्शन वगैरह सब बढ़िया हुआ है. बाइंडिंग काफ़ी अच्छा है. गटर लॉस भी एज सच है नहीं फिलहाल. सो या, इट्स प्रीटी गुड क्वालिटी स्टफ. आर्टवर्क जैसे कि आप देख सकते हैं है ही बेहतरीन. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस इंजस्टिस स्टोरी लाइन. ईयर 1 से ईयर 3 तक मेरा फेवरेट रीड है फ्रॉम DC सो फार. I have heard that year 4 and year 5 lags a bit, but I'll be the judge of that after I finish reading it myself, because reviews and opinions vary from person to person, but writer change हुआ था. So yeah, that might also be the case कि storytelling क्यों थोड़ा falter किया है from year 4 onwards. But anyway, I'll just finish reading it and let you guys know. So this was year 4 and let's have a look at year 5. It's a chunk of a book. Lots and lots of content inside. Parasite looking dope AF. ये शायद Bizarro सा लग रहा है. The artwork as usual pretty good. Semi-glossy, it's mostly matte it seems at this point. Solomon Grundy versus Bizarro. That is gonna be an epic fight. Really cool. Can't wait to finish reading the Injustice complete series. I'm especially interested in how it all ends, and I just wish कि इतना लंबा एक रन है. The ending has to be pretty epic. It has to be very solid. Otherwise it will leave a very bad taste in the mouth कि यार इतना खरीदा, इतना पैसा खर्च किया, इतना पढ़ा और फिर एंड में जाके इट काइंड ऑफ मेड नो सेंस. सो दैट कैन बी वेरी पैथेटिक. आई जस्ट होप दैट इज नॉट द केस विद दिस इंजस्टिस सीरीज. एंड विद दैट बीइंग सेड, आप सबके सामने अलग से फर्स्ट टाइम देखने के लिए मैं इसको श्रिंक रैप्ड ही रहने दिया. हियर इज बैटमैन डैम्ड
in prestige format. Prestige format, as I have mentioned earlier in my previous videos, is a magazine size format जो कि US स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज से काफ़ी बड़ा है, लंबाई चौड़ाई दोनों में, एंड इट इज़ अ बिट स्क्वायरिश. सो श्रिंक रैप से हटाया जाए दोस्तों, क्या कहते हैं आप सब? So ये गया shrink wrap and here is Batman Damned in its entire glory in front of you. So guys, ये मैं already पढ़ चुका था. I had a couple of issues in singles and I read the rest in digital format, and I must say I was very disappointed with the story, and I must say I was awestruck with the artwork. So ये बस आर्टवर्क के लिए ही मैं खरीदा हूँ. आई डिडंट लाइक द स्टोरी वन बिट. ब्रायन अज़रेलो और ली बर्मेहो का जोकर का एक फॉलो अप स्टोरी है बैटमैन डैम्ड, तो वो मेरे पास ऑलरेडी था एंड आई लव्ड इट, बट आई कैनॉट से द सेम अबाउट बैटमैन डैम्ड. आई जस्ट लव द आर्टवर्क, दैट्स इट, एंड यू विल सी व्हाई आई एम बैबलिंग सो मच अबाउट द आर्टवर्क इन अ मोमेंट. तो डस्ट जैकेट ट्रांसलूसेंट सा है, एंड हियर इज Gotham City burning and is in absolute chaos as usual. So डस्ट जैकेट को करते हैं थोड़ा साइड और लेट्स ओपन द इनसाइड pages and show you how the artwork is like. So now you can understand why I purchased Batman Damned. Lee Bermejo, genius of an artist. His work, like हर एक पैनल इतना परफेक्शन से बनाया जाता है, हर एक पेज इतना सुंदर है मानो काफ़ी कॉमिक्स का कवर पेज इसका इनसाइड आर्टवर्क के सामने फेल हो जाएगा. मेरा बस चले आपको हर एक पेज दिखा दूँ, बट वो अन्याय होगा. सो इसलिए आई विल जस्ट कीप ऑन फ्लिपिंग द पेजेस रैंडमली and just keep on giving you guys a glimpse of what you can expect. So yeah, this is that epic page where Batman's junk was hanging initially in the original first issue जो publish हुआ था, because it is of DC Black Label. So creators को पूरा छूट दिया गया था, but the reader base was torn in two halves. काफ़ी लोगों का इससे issues था. So the first issue जहाँ पर originally यहाँ Batman का junk दिख रहा था, so that issue was revoked. वो सारा वापस ले लिया गया था, रिप्रिंट किया गया था, जहाँ पर इस चीज़ को पूरा वो डार्कनेस में ही मिला दिया गया है. आपको अलग से कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पर. सो पीपल हु आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द ओरिजिनल इशू विथ द ओरिजिनल आर्ट वर्क, दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग वेरी प्रेशियस. अभी भी उसका रेट काफ़ी हाई है मार्केट में और आगे जाके और हाई होता रहेगा. सो DC wanted to be a bit more politically correct and diplomat, और उसी लिहाज से इसको हटाया गया है. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस क्रिएटिव डिसीजन. एक्चुअली ये जंक शो करके कहानी पर या ओवरऑल इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसको हटाने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सो एनीवे, लेट्स कीप ऑन फ्लिपिंग द पेजेस. सो वाज दैट Zatanna? इट सीम्स लाइक सो. या शी इज होल्डिंग द हैट, सो Zatanna ही होगी है. डैम, Enchantress here, John Constantine. सो आगे जाके शायद जोकर भी आएगा, लेट्स सी. मेस्मराइजिंग आर्टवर्क. डेड मैन हियर. सो जस्टिस लीग डार्क का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड बॉय oh boy, आई एम लविंग दिस आर्टवर्क सो मच. सो यहाँ पर वो रेफरेंस दिया गया है टू ब्रायन अज़रेलो एंड ली बर्मेहो's जोकर. वहीं क्रिएटिव टीम ने इसको अंजाम दिया है. सो या, इट मेक्स सेंस टू कनेक्ट द डॉट्स एंड टाई अप ऑल द नॉट्स. सो हियर आर द एक्स्ट्राज आई गेस. या, लेट मी शो यू ऑल द एक्स्ट्राज. सो बोनस गैलरी है, अमेजिंग आर्टवर्क्स एंड वेरिएंट कवर्स. A beautiful looking book. So yeah, आपको सारा बोनस कंटेंट मैं दिखा दिया, आपको इनसाइड आर्टवर्क के बारे में भी एक आइडिया दे दिया. स्वैम्प थिंग इज हियर एज वेल. सो कैसा लगा आपको आज का ये अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पर. आप में से कितने लोग ये सब पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. मिलता हूँ अगले वीडियो में विथ अ ह्यूज अनबॉक्सिंग ऑफ कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.